Good morning, children. Today we are going to learn a new chapter from your EVS book. Chapter number 1, Our Body. Children, already you have learned about body parts. आप पहले body parts के बारे में पढ़ चुके हैं ना? But children, today we will learn our body is divided into how many parts. कि हमारी जो body है वो कितने parts में divided होती है. Okay, so now let's start. Children, first you have seen this picture which is in your book. Label the different parts of the body. These are some body parts: head, shoulder, fingers, arm, leg and toes. And children, these all are external body parts. कौन से body parts हैं ये? External body parts हैं ये. Okay. Now children, our body is divided into 3 main parts. How many parts? 3 main parts. And what are they? Head, trunk and limbs. Okay. Our body also has bones and muscles. Our body also has bones and muscles. तो हमारी body जो है वो कितने parts में divided है children? 3 main parts में. Head, trunk and limbs. And our body also has, और हमारी body में इनके अलावा और क्या क्या है? Bones and muscles. तो first we will discuss about the head. The head is the topmost part of our body. अब आप सबको भी पता है ना कि जो head होता है वो हमारी body का topmost part होता है. Like this picture, this is head. ये पूरा क्या है children? Head है. Okay. Now children, the head consists of the hair and the face. अब हमारे head में consist. What is the meaning of consist? That means consist का मतलब होता है कि उसमें क्या क्या है. Means कि आपके हेड में क्या क्या होता है. अब आपके हेयर कहाँ होते हैं? आपके हेड पे ही तो होते हैं. और जो आपका फेस होता है वो भी आपके हेड के साथ ही होता है. सो चिल्ड्रन, द फेस हैज़ 2 eyes, 2 ears, a nose and a mouth. अब हमारे फेस पे क्या क्या होता है? आप सबको मालूम है चिल्ड्रन. 2 eyes, 2 ears and a nose and a mouth. And children, the brain is also found inside the head. The brain controls all the parts of the body and their function. Children, always remember this thing. Brain, जो हमारा brain होता है वो हमारे head के अंदर ही होता है. And children, without brain we cannot do anything, because brain ही है जो हमें help करता है, जो हमें instruct करता है हर वर्क को करने में. ओके, दैट इज़ वाई द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. क्योंकि हमारा ब्रेन ही हमें कंट्रोल भी करता है, हमें इंस्ट्रक्ट भी करता है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, अब कोई भी चीज़ अगर गर्म है तो आप उस हॉट चीज़ को टच तो नहीं करोगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं उस गर्म चीज़ को, उस हॉट ऑब्जेक्ट को अगर टच करता हूँ तो यू विल गेट हर्ट, आपको चोट लग सकती है. तो इसीलिए ऐसी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हु गेव अस, कौन देता है हमें? आर ब्रेन, विच इज़ इनसाइड आर हेड. और ये कहाँ होता है? हमारे हेड के अंदर. ओके चिल्ड्रन. नाउ चिल्ड्रन, ट्रंक. द ट्रंक, सेकेंड मेन पार्ट इज ट्रंक. The trunk is the part of the body between the head and the legs. First we have to understand trunk. Trunk जो हमारी body का part है वो कहाँ पर होता है? Between. Between means बीच में. Head और legs के बीच का जो part होता है that is called trunk. Okay, and trunk consists, I told you here मीनिंग ऑफ कंसिस्ट. मैंने आपको बताया ना कंसिस्ट का मतलब क्या होता है. कंसिस्ट मतलब होना, कि मतलब हेड में क्या होता है. इसी तरह से हमारे ट्रंक में क्या क्या होता है. तो द ट्रंक कंसिस्ट ऑफ द चेस्ट
एंड द एब्डोमेन। तो हमारे ट्रंक में कौन सी दो चीज़ें होती हैं? चेस्ट एंड द एब्डोमेन। ओके चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रन, organs such as the heart and the lungs are in the chest. अब these two body parts, these are internal body parts. okay? इनको हम देख नहीं सकते हैं। हार्ट हमारा इंटरनल बॉडी पार्ट होता है और लंग्स भी हमारा इंटरनल बॉडी पार्ट्स होता है। सो चिल्ड्रन, ऑर्गन्स सच एज, ये हमारे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम आउटसाइड बाहर से नहीं देख सकते। okay, always remember this thing, heart and lungs, these are internal organs. So children, organs such as the heart and the lungs are in the chest. और ये कहाँ पर होते हैं? चेस्ट में होते हैं। सो चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ हार्ट? अब हार्ट का फंक्शन क्या है? द हार्ट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, जो ब्लड होता है, हार्ट उस ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। एंड चिल्ड्रन, द लंग्स हेल्प इन ब्रीदिंग, एंड ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना। ओके, सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लंग्स? यस, द लंग्स हेल्प इन ब्रीदिंग। ओके, एंड चिल्ड्रन, हाउ मैनी लंग्स, कितने लंग्स होते हैं हमारी बॉडी में? 2 लंग्स होते हैं। ओके चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रन, organs such as the stomach and the kidneys are in the abdomen. okay, now abdomen में अब कौन से 2 पार्ट्स होते हैं, कौन से 2 organs होते हैं? So the first is stomach and the second one is kidney. So now what is the function of stomach? Stomach helps in digestion. Stomach helps in digestion. That means breaking down of food. मीन्स आप जो खाते हो वो कैसे डाइजेस्ट होता है? आपके स्टमक में ही तो डाइजेस्ट होता है ना। एंड चिल्ड्रन, किडनीज, द किडनीज क्लीन द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग चिल्ड्रन, कि किडनी हमेशा हमारी बॉडी की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तभी तो कहते हैं कि हमें खूब सारा वाटर पीना चाहिए। ओके, नाउ चिल्ड्रन, ट्रंक में हमने क्या क्या पढ़ा? चेस्ट एंड एब्डोमेन, जो हमारे ट्रंक के पार्ट्स होते हैं। बट हमारी चेस्ट में कौन से 2 ऑर्गन्स होते हैं? हार्ट एंड लंग्स। और हमारे एब्डोमेन में कौन से 2 ऑर्गन्स होते हैं? स्टमक एंड किडनीज। ओके चिल्ड्रन। नाउ द थर्ड मेन पार्ट इज द लिम्स। Our arms and legs are called limbs. Now children, अब हम limbs किसे कहते हैं? हमारी जो आर्म्स होती हैं और हमारे जो लेग्स होती हैं उनको हम लिम्स कहते हैं। मीन्स हम कोई भी अगर वर्क करते हैं, चलते फिरते हैं, कोई भी चीज़ पकड़ते हैं, कुछ होल्ड करना, कहीं पे जाना आना, तो चिल्ड्रन हम ये किससे करते हैं? आर लेग्स। हम मूव एक जगह से दूसरी जगह किससे मूव करते हैं? अपनी लेग से। और अगर हम कोई चीज़ होल्ड करते हैं, कुछ पकड़ते हैं, कोई वर्क करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वो हम किससे करते हैं? अपनी आर्म से। तो चिल्ड्रन, आर आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। तो हम अपने हैंड्स और लेग्स को क्या कहते हैं? लिम्स कहते हैं। ओके चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रन, बोन्स एंड मसल्स, we will learn about bones and muscles. Children, first this is the picture of bones and this is muscles. ये muscles and bones. Now our body is also made up of bones and muscles. अब जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी हुई है? बोन्स और मसल से। बोन्स एंड मसल्स आर कवर्ड बाय द स्किन। दैट मीन्स कि जो हमारी बोन्स और मसल्स है ना चिल्ड्रन, उनको हमारी स्किन ने कवर किया हुआ है। इसीलिए हमारी जो बोन्स है वो ऐसे बाहर दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमारी स्किन से वो कवर होती हैं। ओके, नाउ चिल्ड्रन, ह्यूमन बींग्स हैव 206 बोन्स इन द बॉडी। अब एक ह्यूमन बींग, हम लोगों की बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स होती हैं। एंड बोन्स गिव आवर बॉडी। अब हमारी जो बोन्स हैं वो हमारी बॉडी को क्या देती हैं? शेप, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। क्योंकि बोन से ही हमारी बॉडी को एक शेप मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है और सपोर्ट भी मिलती है कि हम कितने एक्टिवली, कितनी स्ट्रेंथ के साथ किसी भी वर्क को करते हैं।
Okay children, now bones also protect different organs of the body, and children, this is the other function of our bones, कि जो बोन्स हैं वो हमारी बॉडी के और ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं. नाउ चिल्ड्रन, ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन. और हमारी जो बोन्स हैं देखो वो ऐसे ज्वाइन होती हैं. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्केलेटन विच यू हैव सीन इन द बुक. ओके, तो हमारी बोन्स ऐसे ज्वाइन होती हैं एक दूसरे के साथ, बट ये हमारी स्किन से कवर होती हैं, सो इसीलिए हमें बोन्स ऊपर दिखाई नहीं देती. ओके, और हम इस फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं? स्केलेटन. नाउ चिल्ड्रन, मसल्स आर अटैच टू दी बोन्स. मसल्स किसके साथ अटैच होती हैं? बोन्स के साथ. द बोन्स एंड मसल्स टुगेदर हेल्प द बॉडी टू मूव एंड ग्रिप प्रॉपर शेप टू द बॉडी. अब बोन्स एंड मसल्स दोनों मिलकर बॉडी को प्रॉपर शेप देती हैं. ओके, एक्सरसाइज मेक्स द मसल स्ट्रॉन्ग. हमें हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से चिल्ड्रन जो हमारी मसल्स होती हैं ना वो उतनी ही स्ट्रॉन्गर होती हैं, उतने ही हम एनर्जेटिक एक्टिव रहते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए. नाउ चिल्ड्रन, मूविंग अहेड, पोस्चर. द पोजिशन ऑफ द बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड, वॉक और स्लीप इज कॉल्ड पोस्चर. अब चिल्ड्रन, व्हाट इज पोस्चर? पोस्चर क्या होता है? हमारी बॉडी की पोजीशन, जब हम बैठे हैं, खड़े हैं, सो रहे हैं या हम चल रहे हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? हमारा बॉडी पोस्चर. कि हम किस तरह से बैठे हुए हैं, किस तरह से चल रहे हैं और किस तरह से सो रहे हैं. सो चिल्ड्रन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द करेक्ट पोस्चर टू गेट अ प्रॉपर शेप फॉर द बॉडी. ओके, अगर हमें अपनी बॉडी को प्रॉपर शेप देना है, सो वी हैव टू मेंटेन अ करेक्ट पोस्चर. हमें हमेशा करेक्ट पोस्चर को फॉलो करना चाहिए व्हेन वी सिट, स्टैंड, वॉक और स्लीप. Okay children, you should stand straight and should not bend your shoulders. Always we have to stand like this. Sit, stand straight. Okay, ऐसे शोल्डर्स बेंड करके आपको कभी भी खड़े नहीं होना है. ऑलवेज स्टैंड लाइक दिस. सो दिस इज द करेक्ट पोस्चर. एंड चिल्ड्रन, देयर आर 2 more pictures. You should walk straight, you should sit straight and should not bend your shoulders. So when you sit, जब आप बैठे हो, जब आप चल रहे हो, so you have to follow this posture. So this is the correct posture, this is incorrect, and this is the correct posture, this is incorrect. Okay children, I hope you have understood this chapter. So you, all of you, have to read once at home this chapter again. Okay children, bye, have a nice day.